Over to you guys. Sir, we are all gathered here to watch the movie. We've just finished watching the movie, and it was, of course, definitely thought-provoking, and we all have a lot of questions for you after we've seen the movie. I would like to kick off the questions by starting with my personal question. There is your movie starts and ends with parts of details use that is used from आपने दूरदर्शन की फिल्म या सरकार के फिल्म के अंश इस्तेमाल किए हैं और उन्हें जक्सपोज किया है जो आपकी रॉ फुटेज है उसके साथ. तो उसके पीछे का थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकते हैं कि क्या आप एज अ फिल्म मेकर क्या आपका डायरेक्शन था उसमें. हाँ बिल्कुल. पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं. ये सीमांतिनी धुरू हैं, दिखाई दे रही हैं. हाँ, we are co-directors of this film, co-producers. So yes. तो पहले हमने ये फिल्म मैंने पहले देखी थी, जो सुखदेव की फिल्म है, फिल्म डिवीजन की फिल्म, जिसमें वो पुरानी बातें थी जो हमारे देश में सबको बताया जाता था कि इन द 50s, क्योंकि इन द 50s पीपल थॉट, बाय द वे हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? You prefer Hindi? Yes, sir. हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा सर. आगे बात कर सकते हैं. बिल्कुल. हाँ ठीक है. तो इन द 50s ये तो दुनिया को लगता था कि big dams are going to be the answer to the world's energy problem. Like then later on they started thinking nuclear is the answer to the world's energy problems. Both were totally wrong. But in the by the time Narmada Dam began to be built, I mean, at the stage that we joined, it was more than clear that big dams are big disasters. But this film that we showed was actually the government film, Films Division film, was promoting the idea of big dams, that Nehru had said that big dams would be the temples of modern India. So a very secular concept that modern India would grow through these big mega projects. So I thought that was a good place to begin, because we were challenging that very notion that ये big dams की हालत क्या है और वो किस तरह का डैमेज करता है. So then, you know, at various points we go back to that film because they have all these ideas, and there are 3 bits that we've used in the film from I think the film was called The Village Smiles. Village Smiles. Yeah. You know, the idea at one point at the end, they actually say in so many words that old forms of technology. Old technology has to be discarded. Meaning old forms of, you know, while actually the contrary is true, that because they discarded the old forms of rainwater harvesting, that they discarded the methods that people use even in drought-prone areas to conserve water. All that was discarded because the big dream of the big dam will solve everything was fed to people. So this film is saying that those old forms should be discarded, and this is the answer. Whoever the next person. आनंद जी, आप लोगों से मिलके आज बात करके बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आलोक हूं और हसदेव के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूं और पिछले 1 दशक से वो संघर्ष चल रहा है. सो सवाल तो नहीं है, बस मैं पहले तो आपको धन्यवाद ही देना चाहूंगा कि जब कोई भी एक संघर्ष चलता है, इस तरीके का जनवादी संघर्ष है, विस्थापन के जो संघर्ष है, उन संघर्षों को सिनेमा के माध्यम से एक तरीके से डॉक्यूमेंट करना कि कैसे वो लड़ाइयां लड़ी गई हैं. और मुझे लगता है कि नलबदा के उस दौर में, सबसे कठिन दौर में, इसको नलबदा डायरी को बनाना, आज वो बनी है करके हम लोग उस आंदोलन को महसूस कर पा रहे हैं कि वो लड़ाइयां कैसे लड़ी गई थी. और शायद ये नहीं होती डॉक्यूमेंट्री तो हम लोगों को वो सोचना थोड़ा मुश्किल होता. तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देश के तमाम जनवादी संघर्षों की ओर से. और
आप तो संघर्ष के हिस्से रहे हैं लगातार। बस ये है कि उस समय ऐसे जनवादी संघर्षों को एक सिनेमा के माध्यम से लेके आना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, उस समय कितना चुनौतीपूर्ण था, और आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, क्या वो और ज्यादा बढ़ी हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं, या फिर थोड़ा सा आसान हुआ है? एक ये, और दूसरा कि जो पूरी एक बहस रही है विकास और विनाश के बीच की, कि बड़ी परियोजनाएं विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आज भी बहस कहीं ना कहीं समाज में है। लेकिन उन बहसों की दिशा क्या है? क्या जो पहले जिस तरीके से वो बहस थी आज भी उसी तरीके से है? उसमें क्या परिवर्तन आप आज के समय थोड़ा सा देख पा रहे हैं? और हमारा एक हसदेव और पूरे छत्तीसगढ़ के संघर्षों से सवाल पूछो मैं भूल जाऊंगा, तो इसीलिए आप एक एक सवाल अंतिम बस हमारा निवेदन है कि जिस तरीके से नर्मदा के संघर्षों और बहुत सारे संघर्षों को आपने सिनेमा के माध्यम से लोगों के सामने लेके आए हैं, डॉक्यूमेंट्री से, बस्तर छत्तीसगढ़ में भी आज यही स्थिति है, अलग अलग संघर्ष हैं, उन पर भी कैसे इस तरीके की और बहुत अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री आ सकती है, तो वो निवेदन के रूप में हमारे जनवादी संघर्षों से आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं पहले लूंगा। तो अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि हर चीज के लिए मैं ही बनाऊं। मुझे लगता है कि आज नई पीढ़ी आ रही है, और आज एक्चुअली एक सवाल आपका था कि आसान हुआ है या ज़्यादा मुश्किल हुआ है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना ज़्यादा आसान हुआ है, क्योंकि जो पहले जो सामग्री थी वो ज़्यादा महंगी भी थी और उपलब्ध भी होना ज़्यादा मुश्किल था। अब तो सबके पास फ़ोन है, जो शूट करता है। तो यानी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देश में हो ही रहा है, चाहे वो सरकार चाहे या ना चाहे, और सब सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कर सकते हैं। और जैसे कि किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, तो वो पूरा यानी इतना फुटेज आया है क्योंकि लोगों के पास कैमरास थे और लोगों के पास फोन्स थे और लोगों ने रिकॉर्ड किया है। तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग को देखा जाए तो एक तरह से ज़्यादा इजी हो गया है। कंप्यूटर्स पे हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, उन दिनों में वो सब ढूंढना मुश्किल था। मगर जो चीज़ें बदली हैं, जो मुझे लगता है कि और मुश्किल हो गए, वो जो पॉलिटिकल वातावरण है हमारे देश में, जो माहौल है वो तो घटिया हो गया है। वो तो यानी जिस तरह की सरकार आज की है, पहले भी सरकारें वैसे यानी हमारे खिलाफ ही होती थी, मगर पहले की सरकार में हम यानी श्वास ले सकते थे, यानी वी हैड ब्रीदिंग स्पेस। आज वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। आज आप कुछ भी बोलो तो आप जेल में जा सकते हो या मारे जा सकते हो। तो ये हमारी आज की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। और लोग नर्मदा आंदोलन के बारे में पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, निकला क्या? बांध तो बन गया, मगर जो बांध का नुकसान आज सबके सामने है। अगर आप वहां जाओ तो कोई भी देख सकता है कि इस बांध ने जितने भी बातें कही थी कि ये होगा, सब झूठ निकला। यानी पानी किसी को नहीं मिल रहा है। तो यानी ये इसका जो फायदा हुआ है वो कि यानी कुछ लोगों का फायदा हुआ है, वो भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म फायदा हुआ है। क्योंकि जैसे फिल्म में भी बताया गया कि ज़्यादा पानी आने से भी वाटर लॉगिंग होता है, ज़्यादा पानी आने से भी नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उन दिनों में स्टडी नहीं किया था, आज हमारे आंखों के सामने है। मेरे ख्याल से सीमा कुछ बोलना चाहें। तो एक तो आपने जो ये कहा कि जब हम फिल्म बना रहे थे तो बहुत मुश्किल दौर में बनाई हम लोगों ने, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगता है इससे कि हम जब बना रहे थे फिल्म तो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, एक तरह का उत्साह था लोगों में और आशा भी थी कि अगर हम लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे
हक की बात होगी, लेकिन बांध तो बन गया है और लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इसीलिए जो पहले कानून नहीं थे पुनर्वास के देखे या अलग अलग तरह के अभ्यास हो, इस तरीके के कानून जो थे ही नहीं, एनवायरनमेंट के कानून जो थे नहीं, वो लाए गए थे। अभी तो हम देखते हैं कि किसान कानून लाने के पहले ही उसी वक्त उन दौरान उन्होंने एनवायरनमेंट के कानून में भी पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया है उनका। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि तब जो गांव थे वो महाराष्ट्र और गुजरात के गांव छोटे गांव थे, पाड़े जैसे कहते हैं, हैमलेट्स, और वहाँ का पुनर्वास हो ये सोचना मुमकिन तो था, कम से कम नोशनली। आज जो गांव बाढ़ के अंदर बाढ़ का सामना कर रहे हैं वो बहुत बड़े गांव है और एक तरीके से मतलब काफ़ी प्रॉस्परस गांव है, बड़े बड़े घर है, बहुत ज़्यादा अच्छी हमारे यहाँ इस एरिया की जो सॉफ्ट कॉटन सॉइल कहा जाता है वो बहुत ही बढ़िया ज़मीन है वहाँ पर। तो जो स्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा है और इनका पुनर्वास होना, जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो वैसे देखा जाए तो एमपी के लोग वो भुगत रहे हैं। और आज गए करीबन 15 सालों से या उससे भी ज़्यादा जो एक मीडिया की सिंपैथी थी, उसकी नज़र थी आंदोलनकारियों की तरफ, वो पूरी की पूरी हटाई गई है। वो कोई एक्सीडेंटल चीज़ तो है नहीं। तो आज भी कहीं ना कहीं लोग लड़ रहे हैं और ये जो लोग हैं, जो एमपी के लोग हैं, उनका पुनर्वास होना नामुमकिन है। जो लड़ाई लड़ी थी कि ज़मीन के बदले ज़मीन मिले, और सिर्फ ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं, लेकिन जो कोई अगली पीढ़ी वाले जो है औरतों को भी, मतलब शादीशुदा औरत छोड़ के जो वहाँ पे सिंगल औरत है, उनको भी अपने हिस्से की ज़मीन मिले। तो वो जो लड़ाई के एक तरीके से हासिल हुए थे चीज़ें, वो आज सिर्फ कागज़ पर है ना, वो तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि उतनी ज़मीन ही नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अब तक तीसरी पीढ़ी है आंदोलनकारियों की, और लोग कितने लड़ेंगे, ये भी एक सवाल इसका उठता है। क्योंकि लड़ने के लिए जो एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, बाहर से आने वाले लोगों की सिंपैथी और ताकत चाहिए होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि जैसे आप कह रहे, हर जगह कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो लोग जगह जगह अपनी आंदोलन लड़ रहे हैं। तो वो जो मुश्किलें थी, आनंद ने जो कहा कि दमन है, वो ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक तरीके से कोऑप्शन भी है। और जो नैरेटिव है वो केवल विकास के पहले जो एक था वो हिंदू मुसलमान का जो स्ट्रॉन्ग आज एक तरीके का नैरेटिव हुआ है कि हमको आप बर्बाद कीजिए लेकिन मुसलमानों को हमारे बर्बाद कीजिए, एक तरीके कैलकुलेशन मन में है। तो वो अगर आप देखें तो ये सेमी अर्बन एरियाज में बहुत है और उसका जरूर परिणाम आंदोलन के मॉरल स्पिरिट पर भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है जहाँ पर ये डैम का फायदा या नुकसान होना है। जो कनाल है जिसकी बात ही नहीं कहीं भी हो रही है वैसे देखा जाए, तो वो कनाल बने हैं, वहाँ पे लोगों की ज़मीन जो गई है उनको पुनर्वास के फायदे भी उतने मिले नहीं है क्योंकि वो उसमें था ही नहीं, कानून के इसमें सेटलमेंट में था ही नहीं। और वहाँ पे पूरा का पूरा कोरा ठाक है, वहाँ के पानी की एक बूंद नहीं है। तो जिनके नाम पर ये सब किया गया है, कच्छ और सौराष्ट्र के नाम पर, उनका तो इसमें मतलब कोई भागीदारी नहीं है, मतलब विक्टिम के तौर पर भी कोई भागीदारी नहीं है। कम से कम आज हम जानते हैं कि आदिवासी और किसान लड़े हैं इस आंदोलन के लिए, लेकिन ये लोगों को तो मतलब नुकसान होने के बावजूद और उनके नाम पर ये सब होने के बावजूद भी आज उनका जो स्थिति है वो बद से बदतर है। शुक्रिया। और एक और अभी ये नलबदा डायली को देखते हुए अमित भाई और जैसिनी को हमने देखा कि वो उस समय संघर्ष में वो युवा किस तरीके से थे। तो बहुत शुक्रिया। हाँ, जो स्कूल चलाते हैं, बहुत बढ़िया। Priyank Patel. Hello, Priyank. Sorry, apologies. Just one thing. Can we reconnect?
क्योंकि हमारा जूम का टाइम आउट हो रहा है 40 मिनट्स का, तो So get out and then come back. yeah, you can join the same link. I'll end the meeting, Yeah, then same you'll join link. the same link. We'll catch up again. I'm not seeing anything. It works. Okay. हाँ, आप Right. सुधर का इमेज तो नहीं आ रहा है, मगर ठीक है, हाँ हाँ। आ गया। Yeah. जरा सर नमस्कार, मैं प्रियंक पटेल। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, पहले तो सर बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और धन्यवाद इतनी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स हम तक पहुंचाने के लिए। और सिर्फ नर्मदा डायरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारी सीरीज ऑफ फिल्म जो आपने बनाई है, सारी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स, उनके लिए आपका आभार और शुक्रिया। कुछ एक अहम सवाल थे, एक तो सीमांत्री मैम से मैं जानना चाह रहा था और एक आपसे 2 सवाल थे मेरे पास में। थोड़ा सा प्रिविलेज, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा हूं तो थोड़ा एक सवाल का प्रिविलेज ले लेता हूं मैं। सीमा मैम, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि इस पूरी प्रोसेस से जुड़े रहने के दौरान, जब आपने नर्मदा डायरी की पूरी प्रोसेस, लगभग 4-5 साल का पूरा दायरा जो आपका बीता है फिल्मांकन के दौरान का, जब आप लोगों से मिल रहे थे, पूरे प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, एट्रोसिटीज देख रहे थे, और सारी जर्नी से गुजरने के बाद में क्या कुछ ऐसी चीज थी जो आपके अंदर बदली? कोई ऐसी चीज जिसने आपको अंदर से काफी मूव किया, आपको काफी, शायद आपको डिटरमाइन ज्यादा कर दिया, या आपको कहीं से वीक, या कुछ भी आप जो भी बदलाव आपने महसूस किया उस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद? डिटरमाइन नहीं किया अभी, क्यों? क्योंकि इतना उत्साह बढ़ रहा था उस दौरान, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही थी। और इस लड़ाई ने एक दिखाया कि लोगों ने, मतलब जो जिन्हें कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इन लोगों ने दुनिया के विकास के ऊपर जो बुनियादी सवाल उठाए, उसमें वो जो आज हम विकास को लेकर कम से कम थोड़ी बहुत बात तो होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन विकास की धारणाओं को लेकर थोड़ी बहुत जो बात हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान इन लोगों ने दिया है। तो ये मतलब आज ये इस आंदोलन की जो हालात है वो है अपनी जगह पर, मतलब पूरा तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत भुगता है, वो तो बहुत ज्यादा दुख की बात है। लेकिन जो जिस तरीके का एक वैचारिक और फिलोसॉफिकल योगदान इन्होंने दिया है, जैसे जो बिग डैम्स के ऊपर फोरम बना, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बना, ये केवल जमीनी लड़ाई का वर्ल्ड बैंक को भागना पड़ा, और जो रिपोर्ट बना वो एक तरीके का ऐतिहासिक तरीके का डॉक्यूमेंट है वो। तो ये सब जो इन कारण हुआ, वो विकास की धारणाओं को सवाल पूछने का बहुत अहम हिस्सा इन लोगों ने निभाया है। और अभ्यासपूर्ण, भाषा अलग हो, पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन अपनी समझ जो है, जमीनी समझ है, और आंकड़े समझना और सवाल खड़े करना, ये बहुत ही बड़ा ये है। तो इससे मैं खुद सीखी, मतलब जो एक तरीके से किस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि केवल फीलिंग्स सफिशिएंट नहीं होते हैं ना लोगों को कन्विंस करने के लिए। तो ये इनकी लड़ाई से हम लोग बहुत सीखे हैं, और भी लोग बहुत सीखे, इतने बहुत ही अभ्यासपूर्ण कार्यकर्ता और जिन्होंने पावर और वाटर रिसोर्सेज को लेकर कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े किए हैं, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे हिमांशु है या श्रीपाद है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेधा की तो बात ही अलग है, वो तो क्या कहे उसका, तो अमेजिंग। अब सर आपसे मैं एक चीज समझना चाह रहा था, मैं जब से आपकी फिल्म्स देख रहा हूँ या जब से आपके बारे में पढ़ समझ रहा हूँ, आपका जो सब्जेक्ट या विषय चुनने की जो आपकी कला है, जिस तरीके से आपने अलग अलग विषयों पे फिल्में बनाई हैं जो कि ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, चाहे वो पोलराइजेशन के ऊपर फिल्म बनी हुई, अलग अलग जितने भी विषय रहे हैं, तो हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि बहुत से मुद्दे हैं, हर मुद्दे पे फिल्म बनाई जानी संभव नहीं है, या कुछ और लोग होंगे जो बना रहे होंगे। आपकी वो प्रोसेस क्या है जिससे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुनते हैं कि हम अगली जो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इस पर्टिकुलर विषय पे बनाएंगे, या इस फिल्म को और बेहतर तरीके से बनाएंगे? तो एक तो मैं समझना चाहता हूँ आपका कोई भी विषय चुनने के पीछे की जो सारी प्रक्रिया है वो, और दूसरा एडिट सवाल यह है कि हमने कुछ फिल्में आपकी देखी, चाहे जैसे नर्मदा डायरी है, जैसे 4-5 साल की पूरी जर्नी आपने डॉक्यूमेंट की है, कुछ एक फिल्मों में आपने एक डिकेड दिया हुआ है, तो ये इतना लंबा वक्त देना किसी फिल्म को, तो ये जो अंदर से आपकी जील आती है कि
एक पूरे सब्जेक्ट के साथ फुल जस्टिस तभी हो पाएगा तो मैं इतना वक्त उसको दूंगा। तो ये दोनों चीजें आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ। एक तो मैं सब्जेक्ट चुनता नहीं हूँ, सब्जेक्ट मुझे चुनता है। यानी कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आराम करूँ, क्योंकि मुझे हर समय फिल्म बनाना इतना अच्छा भी नहीं लगता। मगर ये हो जाता है कि कुछ चीज़ें सताती रहती हैं और इतनी सताती हैं कि मुझे कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए ये आप कोई भी फिल्म देखें तो ये नहीं है कि मैंने सोचा कि मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट लिखूंगा और किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाऊंगा और फिर उसमें से आएगा तब मैं फिल्म बनाऊंगा। तो मैं तो फिल्म बनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैमरा है खुद का। तो कैमरा है तो कहीं ने मैं कभी भी उठा के कहीं जा सकता हूँ। तो ये होता है कि मैं फिल्म बनाना शुरू कर देता हूँ। कभी कभी वो फिल्म यानी काफ़ी शूटिंग के बाद भी मुझे छोड़ देना पड़ता है कि किसी कारण से। जैसे हम लोग एनरॉन पे भी फिल्म बना रहे थे, वो एनरॉन के फिल्म के बारे में काफ़ी फुटेज शूट किया था एनरॉन के खिलाफ, मगर एनरॉन फिर खुद कोलैप्स हो गई और उसके बाद फिल्म का मतलब ज़्यादा नहीं रहा, तो उसको फिर अबैंडन कर दिया। मगर ऐसे फुटेज जमा हो जाता है जब मुझे लगता है एडिटिंग टेबल पे, मैंने एडिटिंग करते समय, कि अब मेरे पास इतना फुटेज है जो कुछ कहानी कह रहा है, इसको हम एडिट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर समस्या आती है कि फिल्म खत्म कब होती है। यानी ये तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कोई फिक्शन नहीं है, रियल लाइफ तो चलता ही रहता है, तो डॉक्यूमेंट्री कब उसको खत्म करके फिल्म दिखाना शुरू करें, उसका भी वो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसका भी समय मैं चुनता नहीं हूँ, परिस्थिति चुनती है। क्योंकि जैसे देखिए जय भीम कॉमरेड, मैंने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है कि नहीं, जय भीम कॉमरेड जो हमने शुरू की थी पहले, क्योंकि हमारे एक साथी थे विलास घोगरे, जो कवि भी थे, दलित कवि थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया गाने लिखे थे। उन्होंने आत्महत्या की क्योंकि 1997 में मुंबई के एक बस्ती में पुलिस ने 10 दलितों को मार दिया, गोली मार के। और जब विलास जो उसी के पास रहता था उसने देखा तो उसने आत्महत्या कर ली। तो विलास की आत्महत्या के बाद मैंने फिल्म बनाना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि ये इसने ऐसे क्यों किया। उससे धीरे धीरे विलास के जैसे और जो कवि थे, जो गायक थे, उनकी भी शूटिंग की। और विलास के तो सब गाने ऑलरेडी मेरे पास थे रिकॉर्ड किए हुए। तो ये हम करते गए। इस फिल्म को 14 साल लगे बनने में। और ये फिल्म तब फिर रिलीज हुई जबकि कुछ लोग जिनको हम शूट कर रहे थे, जो हमारे जिसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, जो कार्यकर्ता थे फिल्म में, तो उनको वो अंडरग्राउंड चले गए। पुलिस उनको ढूंढने लगी, उन्होंने कहा कि ये नक्सलवादी है। तो जब वो अंडरग्राउंड चले गए फिर हमें डर लगा कि इनको मार देंगे, तो फिर फिल्म दिखाना ज़रूरी हो गया कि इसको ख़त्म करो जल्दी। अब 14 साल हो गए, अब फिल्म को लोगों के सामने इस फिल्म को रखा जाए, क्योंकि हम एक्चुअली रुके हुए थे कि जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई उनको सज़ा होनी चाहिए, तब तक हम फिल्म बनाते रहेंगे। मगर वो तो हुआ ही नहीं, सज़ा हुई मगर वो जेल कभी नहीं गया। और फिर जब ये लोग अंडरग्राउंड चले गए फिर हमने फिल्म को दिखाना शुरू किया। फिर डिफेंस कमेटी बनाई उनके लिए, वो बाहर आए अंडरग्राउंड से, जेल चले गए, फिर 3 साल जेल रहे, उसके बाद उनको बेल मिली तो वो बाहर आए। अब उनमें से कुछ कैरेक्टर वापस जेल चले गए भीमा कोरेगांव के मैटर में। तो ये तो चलता ही रहता है। तो फिल्म का कोई यानी कब ये आर्बिट्ररी है कि कब खत्म करो और कब स्टोरी खत्म होती है। तो आप नई फिल्मों में आप देखोगे कि कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म खत्म हो रही है, फिर एक एपिलॉग आ जाता है, क्योंकि रियल लाइफ चलता रहता है, फिर उसको ऐड कर देते हैं। राम के नाम आपने अगर देखी होगी, तो राम के नाम जो बाबरी मस्जिद
के बारे में है। तो वो 30 साल पहले बनी हुई फिल्म है। वो भी हमने बनाई थी जब बाबरी मस्जिद पे पहला अटैक हुआ था 1990 में। डिमोलिशन नहीं हुआ था, डिमोलिशन होने से पहले हमने फिल्म बनाई थी और दिखा भी रहे थे कि लोग समझें कि सांप्रदायिकता किस तरह से हमारे देश में बढ़ रही है और क्या हो सकता है। मगर वो दिखाने दिया नहीं गया, यानी अच्छी तरह नहीं दिखाई गई। फिर बाबरी मस्जिद टूटी, उसके 4 साल बाद नहीं, जब बाबरी मस्जिद टूटी तब उसका एपिलॉग हमने डाल दिया कि ये बाबरी मस्जिद गिराई गई। और फिर जो एक पुजारी थे, जो राम मंदिर के पुजारी थे, जो बहुत अच्छा बोले फिल्म में, जो उन्होंने कहा कि ये सब सांप्रदायिक लालदास जी, जो उन्होंने कहा कि ये तो दंगा फसाद कराने वाले लोगों ने किया है, ये पैसे और कुर्सी के लिए कर रहे हैं, ये धर्म का, ये लोग तो पूजा करने भी नहीं आए यहाँ पे राम मंदिर में कभी। तो उन्होंने तो, मगर उनका फिर खून हो गया फिल्म खत्म होने के करीब 1.5 साल बाद, तो फिर वो भी एपिलॉग में लाया गया। तो इस तरह से फिल्म कभी, यानी कंप्लीट किसको कब फिल्म कंप्लीट होती है ये भी कहना मुश्किल है। ये तो ये हम दिखाना शुरू कर देते हैं तब कंप्लीट। सर मैं एक आपके किसी ट्रेलर में, आपके किसी इंटरव्यू के दौरान कमेंट्स कुछ पढ़ रहा था, तो यंग बच्चे ने कमेंट किया था, अभी आप जैसे बता रहे थे कि आप तो अब चाहते हैं कि और यंगर जनरेशन आए फिल्म मेकिंग में, तो वो बच्चा कमेंट करता है आपकी पोस्ट पे कि सर आप बिग फैन ऑफ यू, आपकी फिल्म्स मैं देखता हूँ, सीखता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट सिनेमा में ऐसी तरीके का डॉक्यू फीचर मैं भी बनाऊं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन मेरे डैड मुझे मना करते हैं, उनका कहना अगर मरने का शौक है तो ये करना। तो ये हालात अगर हैं, इस तरीके की सिचुएशंस अगर बनी हुई हैं कि परिवार में बच्चे को ये बोला जा रहा है कि इस तरीके के सोशियो इश्यूज पे तभी फिल्म बनाना जब मौत की तुम्हारे पास हिम्मत हो सामना करने का, तो आप क्या समझते हैं यंगर जनरेशन को क्या सीखना चाहिए, किस तरीके से चीजों को सामने लाना चाहिए, क्या उसका एक सही तरीका क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि हम लोग जो जिस दुनिया में जी रहे हैं, अगर हम चुप रह के जिए तो उसमें और मरने में क्या फर्क है। अगर हम आज की समस्या को के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं और झेलते रहेंगे तो फिर मरना ही ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये मरने के डर के कारण कोई अपनी आवाज बंद कर देता है तो मुझे लगता है कि वो मौत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि एक और चीज की, मुझे नहीं लगता है कि जो लोगों को लगता है कि ये आप कर रहे हो ये बहुत डेंजरस है, मुझे ऐसा सही में इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिनके बारे में मैं फिल्म बना रहा हूँ वो एक्चुअल डेंजर फेस कर रहे हैं। मैं तो जाता हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर वापस घर आ जाता हूँ, या यानी मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम है। जिन लोगों ने, आपने मेरी कई फिल्में देखेंगे तो उनमें से कई बार ऐसा हमें एपिलॉग डालना पड़ा कि इनको मार दिया गया बाद में, जैसे लालदास जी को मार दिया गया। मैं पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जब चल रहा था तब मैं फिल्म बना रहा था, उन मित्रों की याद प्यारी, इन मेमोरी ऑफ फ्रेंड्स, उन्ना मित्रा दी याद प्यारी। तो उसमें भी जो जयमल सिंह पड्डा थे, जो फिल्म में आप कई बार देखते हैं उनको, वो भी एंड में मारे गए। और तो इस तरह के जो लोग हम जिनके बारे में हम फिल्म बना रहे हैं वो ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं, तो मुझे वो इसका हक नहीं है कि मैं अपने बारे में सोच के डर जाऊं। थैंक यू सो मच सर, ये वॉइस देने के लिए इसमें सिनेमा के जरिए, और आई एम होपिंग कि जितने भी यंगस्टर्स सारी चीज को देखेंगे जरूर इंस्पिरेशन लेंगे। थैंक यू सो मच। आइए Hello Anand sir, hello Samrit. So this is Somesh this side. I just watched your movie and I loved one of the the most, that it just showed the facts, not the opinions. I have shown the other documentaries, so many other documentaries, which showed one expert coming there and sharing opinions as well. And I think for a filmmaker and for a storyteller, it's very important to just make the film centrist, make the story centrist.
so that no one can make the narration go like this is very opinionated story or opinionated film. So how do you manage to make anything so make your approach centrist? Actually, the film is opinionated. I have to The admit. commentary is not. No. The film is made in a way that what we rely on is the words of the people who live there, and they are not experts. You're absolutely right that I normally avoid experts who have studied or who have some major point of view which they're trying to present. But I'd rather get those things from ordinary people who, when I say ordinary, it's not that I consider anybody to be ordinary, because everybody is an individual in their own right. But people who are not well known, famous, or who have not necessarily gone to school and college, but their understanding of the reality is very often greater than the understanding of experts, more rooted in the ground. So I think that's what you are getting from the film, is you are getting the opinions of people who are actually living that life, and that has more value, uh, historical value as well as value in terms of understanding the situation. And the commentary is not telling you this is what you have to watch or think like this. The commentary is just narrating as Commentary the is story very progresses. factual. It's only telling you this is what is happening. I mean, this is just look at what is happening, or this is where we went. This is what happened. So that's all the commentary. Very little of it that there is. In fact, I normally avoid too much commentary. In most of my films, some of the films don't have any commentary. Like the film I made called Hamara Shehar, Bombay, Our City, on the slums, on the demolition of people who are homeless in Bombay. That entire film has no commentary. So because you just hear it only from the people. But in the way a film is edited, you have a lot of power to tell the story. So how you juxtapose things, how uh, you know, the story gets created, the narrative gets created not by the filmmaker narrating it in so many words, but by the positioning of different sections of what has been and the editing. So I think there is a lot of, in the sense that there is definitely a point of view in all of my films. I don't deny that. In fact, most people, some people, not most people, some people consider my films to be propaganda. And it's propaganda. They call it propaganda because it's a point of view that they don't want to hear. That's why it becomes propaganda for them. I mean, when they see Doordarshan every day, they don't think it's propaganda. When they see Arnab Goswami, they don't think it's propaganda. They think what I am saying is propaganda. So it's just their own baggage that they bring to the situation. And there's nothing that is not, it doesn't take a position. There is everything in life which has some, not taking a position is also a very clear position. So while I have a strong point of view, which gets expressed in these documentaries, I do a lot of research to ensure that whatever I'm saying is factually, I can back it up. Like in a way, I'm always trying to present it like a court case, like an argument in court. But here's the evidence. Now you, as an audience, you are the judges. You judge according to the evidence that is presented to you. And I'm presenting evidence from different points of view. So you have the choice of making up your mind about it. So what you see is not, what is there in terms of what you see is not some manipulated material. Nobody has been told to speak in a certain way or do a certain thing. So that is definitely where it is. But at the same time, it's the putting the story together that has the filmmaker's point of view, which is But like, you can form your own opinion on it. yes. Yeah, so basically So like, for example, when people, War and Peace is one Anand's film, which is about the nuclear nationalism, and it has it's about India Pakistan testing their bomb,
in the late 90s in 1997 98. and 98. And so some of the Pakistani right wing, I mean, or those who believe in war and conflict, they feel that it is anti-Pakistani, while the Indians here who endorse the bomb and are viscerally against Pakistan, they think it is for Pakistan. So, these are very, very entrenched kind of camps again. So but there are so many others, majority, who see the complexity of it and understand that both parties are to be blamed, and there is America that is to be blamed. Thank you. It was great meeting you guys. नमस्ते आनंद जी, नमस्ते सुमंदित जी। ओके, सबसे पहले तो मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आपके पीछे बाबा साहेब और सावित्री देवी की तस्वीर है। वो बस मेरे चेहरे में स्माइल आ रही है। तो या मेरा एक एडिटिंग टेबल का क्वेश्चन था, बट रूम को देखें तो वहाँ पे महात्मा गांधी भी है। मेरा एक एडिटिंग टेबल का क्वेश्चन था, बट प्रियांक भैया ने वो पूछ लिया, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगा। जब से मैंने आपकी फिल्में देखना शुरू की है, चाहे वो राम के नाम हो, चाहे वो जय भीम कॉमरेड हो, या चाहे वो नर्मदा डायरीज हो, हर फिल्म ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया लाइफ के टूवर्ड्स, अपने सोसाइटी के टूवर्ड्स, और हर फिल्म ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। और मुझे राम के नाम का एक आईएएस एक पार्ट याद आ रहा है, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस देश का कुछ हो, बट मुझे इस देश से अब कुछ उम्मीद नहीं बची, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ गलत हुआ रहता है ऑल। तो ये एक निजी सवाल है, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट या इनकम टैक्स ऑफिसर, सॉरी सर। हाँ, तो ये एक निजी सवाल है सर। ठीक है, आप बोलिए। हाँ, एक निजी सवाल है, तो मुझे नहीं पता ये कैसा बाहर आएगा, बट आज के टाइम में जैसे हमारी सरकार कर रही है कि जातिवाद के नाम पर बांटना, धर्म के नाम पर बांटना, छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह के वो कपड़े पहनते, बुर्का और उनके नाम पर घसीट के मारना, और लव जिहाद का चोचला पालना, ये सब जो हमारी सरकार कर रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे जो बोले थे उसकी वजह से मेरे मन से भी ये जो उम्मीद है वो जाते जा रही है। तो आपने जब इतना सब कुछ देखा है, चाहे वो जातिवाद से लेकर हो, या धर्म से लेकर हो, या किसी भी चीज से लेकर हो, ये एक निजी सवाल है। सो क्या आपको क्या लगता है उस बारे में कि हमारे देश का अभी भी कुछ हो सकता है, या होपलेस हो चुका है ये कंट्री? होपलेस कभी, ये मुझे लगता है कि सिर्फ हमारा देश नहीं, मगर पूरी दुनिया को हम देखेंगे तो वो वेव्स में चलती है। वो कभी डाउन हो जाती है, कभी फिर उम्मीद बढ़ती है, फिर डाउन हो जाती है। ये तो एक साइकिल है, और ये आप जब डाउन हो जाते हो तब या तो आप आत्महत्या कर सकते हो, या तो आप सोच सकते हो कि आत्महत्या करने से होगा क्या, इससे अच्छा मैं लड़ूं, इससे अच्छा मैं ये समाज को बदलने का ठेका लूं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये हो सकता है, होगा ही, यानी सिर्फ हो नहीं सकता है मगर होगा, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, और जब जाएंगे तब मुझे लगता है बुरी तरह जाएंगे, क्योंकि वो जब जाएंगे जब लोग जग जाएंगे कि ये क्या हमारे देश को क्या कर दिया, कितना बर्बाद किया है। आज थोड़ी सी झलक हमको दिखाई दे रही है कि लोग समझ रहे हैं, मगर उनका जो प्रोपेगेंडा का मशीन है वो इतना मजबूत है, उनके पास इतने पैसे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है हमारे देश में कि एक ही पार्टी के पास इतने पैसे हो गए और बाकी सबको उन्होंने कंगाल बना दिया। तो इलेक्शन भी लड़ना बहुत मुश्किल है आज के दिनों में।
मगर सब इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से इन लोगों ने कैप्चर करके रखा है वो भी एक है। मगर जितना भी प्रोपेगेंडा करेंगे वो रियलिटी को नहीं बदल सकता है ना। वो तो ये नहीं बदल सकता कि महंगाई बढ़ रही है उसको क्या कर रहे हैं, वो उनके कारण बढ़ रही है, ये सबके सामने है। और मुझे लगता है काफी जल्दी लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये उनके कारण हो रहा है, दुनिया के कारण भी है सिर्फ, मगर क्योंकि इनके जैसे लोग सिर्फ हमारे देश में नहीं है, इनके जैसे लोग दुनिया में और जगह भी हैं और इसीलिए दुनिया बर्बाद हो रही है। अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें, ये हमें सबको बता रहा है कि हमारे पास मेरे ख्याल से अब समय बहुत कम रह गया। तो ये आपकी जो निराशा है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी 70 पार कर चुके हैं। तो हमें यानी ये दुनिया कितने साल जीवित रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आपका पूरा आप 70 साल तक पहुंचोगे कि नहीं इसके बारे में आप 100 साल जिए। वो आप 100 साल जिए। मगर मुझे लगता है कि जिस गति से दुनिया बर्बाद हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, उसको हम रोकेंगे नहीं तो ये दुनिया बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगी। मगर मुझे उम्मीद है कि ये पूरी दुनिया एक पॉइंट आएगा कि वो कहेगी अब इसके आगे हम नहीं कर सकते ये सब। थैंक यू सर, ये इतना ही चाहते हैं। तब तक हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, तब तक हमें उम्मीद ना हार के लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें यानी अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। अभी करने की जरूरत है, अभी आपका रोल है, वरना तो घर में सोएगा। Namaskar, and first of all, of course, my deepest congratulations and gratitude for the work that you've done, and Mr. Padwardhan for the legacy that you've left, for everything that we're looking forward, we have to look to. And I say this not just because of the politics of it or where our country is and what it is doing, but as a fan of your craft. I'm absolutely thrilled every time I see your movies because of the storytelling of it. And so to sort of switch gears, because the whole politics part of it is a little heavy and overwhelming and hard to escape, but I would still do it. I wanted to, something that jumped out to me when I was seeing the film was in the narration, the way, the aesthetic realities of tribal ways of living, of tribal, and just in how that, how it looks to us versus urban ways of living versus the complexity of, policy making and the entire, when we look at the Taj and where the, the World Bank president was staying. And when you see, these different clips alternating, it sort of comes out to you. How much of it, and you say that you collect all of these shots and then you see what story comes out of it, but how much of it was, a conscious decision on your part, and how much of it came out to you, or how much of it is just a part of the entire story? I think I'll let Seema answer first and then I'll come back. Well, we were, during the course of shooting, it was it was very constant contact in the villages, staying in the villages for a very long time. Even if one came back, going there, without spending time away for too long and always being available. Another thing is that this film, while it came out as a film at one point, it started by simply documenting the struggle that was emerging, and as a support, to kind of gather evidence, gather material, so that the Andolan could use it during the struggle. So it's only later at some point the idea of structuring it into a film came about. So that's why the material that is there is nearly almost all organic. There is nothing that we felt that, oh, now we want to make a film and we don't have this, so let me go back and shoot this. So none of it is that. It is very much as it happened, and it happened primarily because somewhere the Andolan wanted us to be with them while they were in their moment of struggle. Not only especially. And there is too much that is not part of the film. There is, because of video, one could
have that kind of a luxury of having a large ratio of something that would not be used. So a lot of it is purely just, you know, material that they would use in press conferences of the court was willing to admit it as evidence. Interviews, very boring and manipulated interviews with, you know, IS officers and police officers. And so there's lots that is not there as well. And also, apart from the fact that we went to Narmada Valley, often Seema went more than me, much more. But the Andolan in those days used to come to Bombay often. So we were in contact not just by us going there, but Andolan would come here because they would come to protest. Yeah, a lot of the larger fights, like the, you know, the fast that they had, the 21-day fast, which was earlier in Pekua, but after that, even here, those were big, basically because it was at the beginning of the phase where the Maharashtra villages were at the cusp of the you know, the floods, the drowning, and so a lot of it was also here. It's, yeah. No, now that you mentioned that, you know, you went along with the Andolan, how much did you ever like sense any hesitation on their part, especially when there was talk of, you know, the police wanting, when they said that we will essentially, you know, drown ourselves? I mean, when that hit that point. So at that point, I at least personally stopped being a filmmaker. I was trying to ensure that they don't do what they say they're going to do, because I couldn't stand the thought that people like Medha Patkar or actually Simantini's sister was Arunati Guru, they were to drown themselves in Narmada, and that was horrific. So I was rushing around to Bombay and making sure that the newspapers carried the story enough so that they could put pressure on the Andolan to not carry out what they were doing. And also, the only way the Andolan would have accepted that if the government compromised in some way. And luckily, at the last minute, there was a kind of a compromise reached, and that thing was avoided. Subsequently, over the years, while they've not threatened to drown themselves in the Narmada, they've gone on, Medha has gone on innumerable hunger strikes, which have affected her health quite badly, because you can't have 20-day, 30-day hunger strikes without damaging your body in some way. So actually the price has been paid by the activists, and yet when as they explained to me, if we have chosen the path of non-violence, we're not going to kill somebody else, then our bodies become our weapon. I mean, that is, we have to put our bodies on the line as non-violent activists. Hey, just a second. We are running out of time for the 40 minutes thing. Can we join again if time permits, Anand? We may not be able to do the whole cycle, so we'll do another 15 minutes. All right. So let's wrap it up in 15 minutes. Okay. Right? So we go off and come back again. Yeah, 15. Okay. So I think this is the last question, and let's keep it short. I just checked the mail. Anand has to leave by 8:15, and so we have like 2 minutes. So hope we can discuss like 5-10 minutes, and let's wrap it up then. All right, over to you. नमस्ते। मेरा एक आपसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो एक जवाब, एक संदेश चाहता हूँ। हम देखते हैं कि हम जैसे आपकी जो नर्मदा पे डॉक्यूमेंट्री है, हाँ वो एक देती है ऊर्जा की मैं बैठ गया हूँ तो खड़े हो जाता हूँ, ये हमेशा देती रहेंगे। पीछे देखते हैं नीचा नगर हो, चाहे वो 2 बीघा जमीन की बात हो, तो हम जो आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, तो हमने एक सिस्टम बना लिया है कि उसमें लगातार संघर्ष होता ही रहे। और ये जो हम आज राष्ट्रवाद में आर्थिक व्यवस्थाओं में बात कर रहे हैं, और जो राष्ट्रवाद और धार्मिक जो सांप्रदायिकता देख रहे हैं, वो तो इंजन फ्यूल का काम करती है ये पूंजी। तो ये पूंजी की जो व्यवस्था है, मेरे घर में गर्मी लग रही है 45 डिग्री की, तो मैं तो कूलर चालू करूंगा ही। तो आप बोलेंगे कि आप तो कंजप्शन करते हैं, बिजली और एसी चलाते हैं।
तो हम उसमें फंस चुके हैं। अब जब एक युवा इस फंसे हुए चीज में खड़ा होता है, अब बोलता है कि इसको ठीक करना है, तो उसके बाद की मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो निराश हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि हम उस सिस्टम में बंध गए हैं, हमारी सरकारें बन चुकी है, हमारे पॉलिसी के मेकर बन चुके हैं उस आर्थिक व्यवस्था में, कि वो उससे भाग ही नहीं सकते। अब उससे भाग नहीं सकते तो उनकी मजबूरी है, अब मजबूरी है तो वो करेंगे और फिर संघर्ष होगा। तो जब एक युवा खड़ा होता है और खड़ा होगा, जब वो अपने कॉन्शियस माइंड में आएगा कि हाँ ठीक करना है चीजों, तो वो देखता है जब 20 साल 40 साल को आगे को, तो देखता है कि वो लगातार संघर्ष रहेगा। तो उस स्थिति में उसके मनोवैज्ञानिक जो उसका जो माइंड है, उस चीज पे मैं चाहता हूँ कि आप एक संदेश छोड़े कि हाँ नहीं, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी चाहे चीजें कैसी भी। एक संदेश, छोटा सा सवाल नहीं। आनंद, संदेश छोड़ने के पहले मैं कुछ एक विचार आपके मन में डालना चाहती हूँ। लास्ट वर्ड, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा है, मैं जिस तरीके से समझ रही हूँ आपका कहना, ये हमारी जो मतलब जो जिसे हम रीजन चाहते हैं, पॉजिटिविज्म, ये कहते हैं कि मतलब साइंस के जरिए सब होगा और क्वेश्चनिंग होगा वगैरह। तो दुनिया के एक दौर में 300 साल पहले ये शुरुआत हुई, और लेकिन उसका बहुत ही बड़ा नाता साम्राज्यवाद और वसाहतवाद, कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ है। और उसी के दौर पर, उसी एक वो कैपिटलिज्म के फेज में राष्ट्र बने जो डेमोक्रेसी थे, लोकतांत्रिक राष्ट्र थे। और आज हम लोगों ने ये जो बुनियादी नाता है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का, उससे जूझ नहीं रहे हम लोग। और इसके लिए हम लोगों को इन परिभाषाओं को थोड़ा अलग से वापस खोल के देखना होगा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो किस तरह के डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जिस तरीके के गांधी जी कहते थे कि सबसे आखिरी इंसान की बात करो, तो इन चीज़ों को अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो बहुत सारे सवालों के जो उलझने हैं वो धीरे धीरे बदलेंगी, वो मतलब वो छूटना शुरू होगी। तो ये जो बाकी की जो पॉलिसीज बने हैं वो उस नाते के उनका जो मतलब कैपिटलिज्म और नेशन स्टेट्स, डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स, इनका जो नाता है उनसे बने हुए हैं। तो उन कॉम्प्लेक्सिटी को उलझ के समझना पड़ेगा। ये हम अभ्यास करते हैं हमारे स्कूल कॉलेज से, इसको हमको वापस सवाल उठकर उठाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एक चैलेंज है। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, मैं जिसके जैसे समझी, मुझे लगा कि आप इसी को उठा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा जो अभी कहा। तो मैं इन्होंने काफी थियोरेटिकल जवाब दिया है, मैं आपको ज्यादा आसान जवाब देना चाहता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि आप जो भी काम करते हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, और आपकी सेंसिबिलिटी ऐसी अगर बन जाए कि आपको न्याय की लड़ाई जब आप लड़ोगे तब आपको मजा आएगा। तब आप ये नहीं पूछोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है। और आपको सिर्फ क्रिकेट देखने में मजा आएगा तो अलग बात है। सिर्फ कोई भी, यानी हम तो क्रिकेट भी देखते हैं, यानी फिल्में भी देखते हैं, मगर हमें जो मज़ा, असली जो मज़ा आता है जब हम संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, तब जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तब। तो मुझे लगता है कि ये जो आप नौजवान होके आप क्या कर सकते हो ये पूछ रहे हो, ये क्या कर सकते हो, ये अलग अलग लोग अलग उसका जवाब देंगे, क्योंकि कोई एक चीज में ज्यादा उसको मजा आएगा, किसी और को दूसरी चीज में मजा आएगा, मगर मजा आना जरूरी है। मेरा सवाल मतलब युवाओं के संदर्भ में था जो सवाल उठाते हैं। हाँ। तो खैर मुझको जवाब मिला और मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यानी ये आपकी सेंसिबिलिटी हो जाएगी कि हम अगर ये काम करेंगे तो ही मुझे मजा आएगा, तो फिर
यानी या ये कम से कम और किसी को दुख हो रहा है, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इतना तो कम से कम मैं ना करूं, ये अगर लोग सोचेंगे तो ये बहुत मतलब एक बहुत ही यानी सिंपल सी चीज है। हम एक देश में रहें जिसमें मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, यानी हमारे देश में एक तरह के जेनोसाइड की संभावना है। हम हिटलर के रास्ते पे चल रहा है देश, और हमें उन जर्मन्स के जैसे नहीं बनना है जो बाद में कहते कि हमें पता ही नहीं था। आपको पता हो गया है, ये हो रहा है हमारे देश में, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, सभी पीड़ित लोगों के साथ। तो हमें, अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो बाद में ये सवाल लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे। सर मैं बता नहीं सकता कि हम कितने थैंकफुल है, और अगर मैं पर्सनली अगर सामने होता आपके तो मैं भी पैर छूता आपके। सो मैं अलाउड नहीं करता हूँ किसी को। सर तो एक हक के बिना तो मैं जाने नहीं देता जी। सो आई वुड लाइक टू अजय टू कंक्लूड दिस। सो या आनंद जी एंड सीमांतिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं ये कहना चाहता था, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मतलब एक समय था जब मैं अपने कॉलेज में था और मैं बहुत ज्यादा एक्टिविज्म और एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था, और उस समय लगता था कि हाँ, ये जो बिल पास हो रहा है ये हम रोक देंगे, हम जाके इतने नारीवादी करेंगे, इतने लोगों से बात करेंगे, रोक देंगे। और मैं जिस अपने जीवन के पड़ाव में जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, तब मैं इस विचारधारा को हो गया कि जो चीजें होती है वो वैसी होती रहेंगी और कुछ आप कर नहीं सकते। बट जब मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसमें एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि आपने जो रीजन आज की डेट पे पानी के नीचे जा चुके हैं उनको अपनी डॉक्यूमेंट्री में प्रिजर्व किया है। वो कल्चर जो अब शायद वहाँ का हमारी जनरेशन कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी, वो आपकी डॉक्यूमेंट्री में प्रिजर्व्ड है। उसके साथ ही साथ एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि कोई चीज आप एक तालाब में, आप एक पत्थर, एक कंकड़ भी फेंकते हो तो उसका कहीं एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये हमारी जो यूथ की कॉन्शियसनेस है उसमें डेफिनेटली जितने लोग इस डॉक्यूमेंट्री से एक्सपोज होंगे, probably वो micro aspect of that location and the situation might not get affected, but at a bigger scale, at a macro scale, the world is going through a change, and your documentaries like these are definitely the reason why the consciousness of youth is expanding. And and जो आपने waves की बात की कि हम नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, वो waves चलती रहेंगी, उसमें मुझे लगता है कि ये वेव्स ऊपर नीचे जा रही हैं, बट इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। मे बी वो ऐसे ऐसे जा रही है, पर वो शायद ऐसे ऐसे जा रही है। तो जिस तरीके से जितना हम नीचे जाएंगे उस जगह से हम क्या ढूंढ के लेके आते हैं, और क्या मतलब at the worst position of our life, what can we like crystallize out of it is what is going to be the catalyst for the highs. And this documentary is something that, and to be very, very open about this, I went to Raipur, and Abdul, my childhood friend, told me about Hasdev and the situation that's arrived in Raipur and Chhattisgarh. And I was like, ये तो नर्मदा में भी हुआ था. There is an entire documentary I've seen, and so the reason why we got together and watched it, it's personal to us. At the same time, it's global. So thank you for saying yes and joining us. मैं आपको भी थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे लोग जब पूछते हैं कि आप निराश नहीं होते, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं और दुनिया बदली नहीं, बिल्कुल, मगर और वो सच भी है, मगर आप जैसे स्क्रीनिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फिल्म में ताकत है, मैं भी मानता हूँ कि ताकत है, मगर वो ताकत का कोई मतलब नहीं होता है जब कोई देखता नहीं उस फिल्म को। तो यानी निराशा जो मुझे फील होती है वो ये है कि हमारी फिल्म में अंडर यूटिलाइज है, यानी जिस तरह से दिखानी चाहिए हमारे देश में वो होता नहीं है। हमारे देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हम पहुंच नहीं पाते हैं लोगों तक। वो काम आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद दें। हाँ,
थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका जो सेटअप है वो बहुत ही जी, अच्छा, ये मुझे बहुत भी अच्छा लगा। मैंने हाँ? कई बार जूम में भाग लिया है, तो ये सेटअप बहुत अच्छा है कि एक एक आदमी आके कैमरा के सामने और जो आपका अच्छा तरीका है। आपकी ये स्क्रीनिंग स्पेस है क्या जहाँ ये नुक्कड़ है रायपुर में जल विहार में, और ये प्रियंक भैया का है। और हम तो बस आइडिया लेके गए थे, ये जितना भी हमारा जो आज की डेट में सब लाइक मटेरियल चीजें हुई है ये प्रियंक भैया की तरफ से। और प्रियंक भैया सिर्फ नुक्कड़ ही नहीं, प्रियंक भैया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर्स, आई वुड कॉल एंटरप्रेन्योरियल पर्सन। एंड सोशल चेंज जितना रायपुर में हो रहा है, मैं जाता हूँ तो मैं तो बहुत इंस्पायर, मतलब मैं इतना अप हो जाता हूँ। मतलब आरएसएस तो बस हम लोग 3 लोग कार में बैठ के डिस्कस करते हैं, बनाते हैं, फिर मेरे को मेरा दोस्त लगा चल प्रियंक भैया से मिल ले, एंड सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऑल क्रेडिट्स टू द लोकेशन एंड all the facilities, projector, screen, location, the air condition, the electricity we are consuming, it's all Priyank Bhaiya, so all thanks to him. एक चीज का दुख हो रहा है कि मैं भूल गया बताना कि इस प्रोग्राम में हमारे साथी विनायक सेन को भी होना चाहिए था। विनायक सेन जो इलिना गुजर गई, मगर विनायक और उनका पूरा परिवार रायपुर में पहले रहते थे, उनको एक्चुअली एक तरीके से भगा दिया गया है सरकार ने और परिस्थिति ने। मगर ये जब आपका वीडियो हो जाएगा तब मैं उनके साथ शेयर करूंगा। जरूर सर, मैं आपको मेल करूंगा। ये हमारा सर आमंत्रण है आपको कि जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी वक्त मिले, प्लीज आइएगा, स्वागत रहेगा आपका रायपुर में। रायपुर आपको दोबारा आमंत्रित करता है, वक्त निकाल के आइए। हम सब लोग फिजिकली भी आपसे मिलना चाहेंगे, और काफी कुछ है जो इस वर्चुअल कनेक्शन के बीच शायद छूट जाता है, तो फिजिकली आपकी प्रेजेंस में आपके सारे जो लोग यहाँ पे हैं, हमारे साथ के काफी सारे लोग आपसे कई सारे सवाल और पूछना चाहेंगे। अगली मुलाकात के लिए आपसे विदा चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। एक पॉइंट आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, ये कैंपस जो है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है और उसको डम्प एंड डेफ लोग चला रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर प्रियंक। अरे फैंटास्टिक, अमेजिंग। हर एक को धन्यवाद, सभी को देखने के लिए। थैंक यू। ओके बाय।